Now let us do the solution of the problems that are given you the previous section. Number 1, if a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, find the direction cosines. You know that the direction cosines are L, M and N, where L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma. These are the values of alpha, beta and gamma. So L is equals to cos 90 degree हो गया, that will be equal to 0. M is equals to cos 135, जिसको 135 को आपने 90 प्लस 45 तोड़ा, cos 90 प्लस theta is equals to minus sin theta, that will be equal to minus of sin 45 degree, which is equals to minus 1 by root 2. Or you can evaluate directly by the help of Kelsey. N is equals to cos 45 degree, that will be equal to 1 by root 2. Therefore the directions of cosine of the lines are 0, minus 1 by root 2 and 1 by root 2. Second question है आपका, find the direction cosines of a line which makes equal angles with the coordinate axis. Okay, the solutions are, let the direction cosines of the line makes an angle alpha with each of the coordinate axis. Why we take angle alpha? Because here it is given that they are making the equal angles. ठीक है, therefore you are taking the angle alpha. Therefore L is equals to cos alpha, M is equals to cos alpha and N is equals to cos alpha. तो देखिए L की वैल्यू cos alpha, M की वैल्यू cos alpha और N की वैल्यू cos alpha, because here alpha is equals to beta is equals to gamma. Now considering L square plus M square plus N square is equals to 1, तो आपने सबकी जगह cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर अल्फ़ा रखा, सॉल्व किया तो आपको cos अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई ये. ठीक है, तो आपको जो फाइंड करना था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन इक्वल एंगल अल्फ़ा विद ऑल द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 by root 3 प्लस माइनस 1 by root 3 एंड प्लस माइनस 1 by root 3. Now see the next question. If a line has the direction ratios this, then what is the direction cosine? तो direction ratios आपको ये दे रखे, it means this is the value of small a, small b and small c, and the value of the direction cosines are this. That will be equal to a upon under root of a square plus b square plus c square, comma b upon under root of a square plus b square plus c square, comma c upon under root of a square plus b square plus c square. a square plus b square under root of a square plus b square plus c square की आपने वैल्यू निकाली, वो निकाला है आपकी 22. आपने वो वैल्यू पुट कर दी, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले में रख दिया, आपको मिल गया ये आंसर. ठीक है. Now see the next question. 4th, show that the points these are collinear. If the direction ratios of two line segments are proportional, then the lines are collinear. आपने क्या बताया, अगर डायरेक्शन रेशियोज जो होंगे किसी भी दो लाइन के, अगर वो प्रोपोर्शनल में होंगे, प्रोपोर्शनल मतलब जैसे 2 4 6, तो 2 4 6 का प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 4 8 एंड 12, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे, मल्टीपल फॉर्म में होंगे, तो आप उसको कहोगे दे आर दी पॉइंट, देन दी लाइन्स आर कोलिनियर. आप उन दोनों लाइन्स को क्या कहोगे, कोलिनियर. तो आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे. आपने सबसे पहले निकाल लिया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, तो ये वैल्यू मिल गई. ये वैल्यू क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1. ये होते हैं आपके डायरेक्शन रेशियोज़. तो आपने ये पुट किया है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपने लिया और ये वैल्यूज़ निकाली. x2 ये वाली जो वैल्यू होगी a की, ये वाली a की वैल्यू, दिस इज़ x1 y1 z1, और ये जो b की वैल्यू है दिस इज़ x2 y2 z2. तो आपने ये वैल्यू पूरी रख ली, तो आपको ये मिल गया इसके डायरेक्शन रेशियोज़. तो a की वैल्यू आ गई ये, b की वैल्यू ये आ गई, c की वैल्यू आ गई ये. तो डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ लाइन, अच्छा ये तो आपने निकाल लिया ज्वाइनिंग ए एंड बी. सिमिलरली आपने बी और सी के लिए निकाल लिया डायरेक्शन रेशियोज़, वो आ गए ये. a2 आ गया आपका ये, b2 आ गया आपका ये, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2. आपने तीनों निकाले, इनकी वैल्यू कितनी आ गई -1/2, जो कि सेम आ गई. ठीक है, ये भी एक तरीका होता है डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने का. अगर इनका फ्रैक्शन, इन तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू सेम आती है तो भी आपके ए बी सी पॉइंट जो होंगे कैसे होंगे, कोलिनियर. ए बी सी पॉइंट कोलिनियर, दैट मीन्स द टू लाइन्स आर
पैरेलल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर दिस. ठीक है, आपने एक ट्राइंगल बना लिया जिसके वर्टेक्स आपने ये बना लिया. अब आपको दिखाना है इसके क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है हर एक साइड के इस ट्राइंगल के. ठीक है, तो सबसे पहले आपने कौन सा ले लिया, ए और बी. ए और बी ले लिया. ठीक है, और जो डायरेक्शन कोसाइन होता है रेशियो ऑफ ए बी, तो आपको यही पता है, ए बी सी निकालना है. ए बी सी की वैल्यू यही होती है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. तो ये तो ए बी और सी निकला है. अंडर रूट ऑफ ये आपने निकाल लिए, ए बी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. वो हो जाएगी आपकी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू. तो ये डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू होती है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर. ये होती थी ना, देखो, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक मिनट में ज़रा इसको साफ करके फिर लिखती हूँ. देखिए, आपको याद है डायरेक्शन कोसाइन का क्या होता था, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यही होती थी. आपको बस क्या फाइंड करना है, ए बी और सी. ए और बी ए बी सी क्या है आपके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं. वो डायरेक्शन रेशियोज़ कैसे निकलते थे आपके, वैसे ही x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. तो x2 - x1 जो होता था ये a वैल्यू है, y2 - y1 ये आपकी b वैल्यू है, z2 - z1 इज़ योर c वैल्यू. बस आपको एक एक करके हर एक इक्वेशन के लिए, हर एक लाइन के लिए निकालना है. तो आपने ए बी पॉइंट के लिए निकाला तो रेशियोज़ आपके ये आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस आपके ये आ गए. ये मैंने एक अलग फॉर्मूला करके लिख दिया है, बट फॉर्मूला वही है बच्चों, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एक नया फॉर्मूला आ गया. ये कोई वो नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही फॉर्मूला है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आप उसी फॉर्मूले से कीजिएगा. ठीक है, सिमिलरली आपने सेकंड वाला भी किया तो BC में किया. BC में भी आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, फिर से आपने डायरेक्शन कोसाइन का वही फॉर्मूला रखा और सॉल्व कर लिया. उसको सॉल्व किया तो आपकी ये वाली वैल्यू आ गई इसके लिए, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए. आपने C वाला सॉल्व किया, C वाला मतलब थर्ड वाला किया CA के लिए, तो वहाँ के लिए भी ABC की वैल्यू निकाल ली, डायरेक्शन कोसाइन की आपने निकाल ली ये वैल्यू. तीनों के लिए आपने अलग अलग वैल्यू, तीनों साइड्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ निकाल ली. कंफ्यूज, फिर से कह रही हूँ बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा इन फॉर्मूलों से. ये फॉर्मूले कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले नहीं है, ये वही फॉर्मूले हैं, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. और ए बी सी आपके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज़ होते हैं, उनकी वैल्यू वही होती है, x2 - x1 that will be equal to a, y2 - y1 that will be equal to b and z2 - z1 that will be equal to c. ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिएगा.